admission in the BMS, they have got a lot of queries in their mind that what in what course we have taken admission and how this course is different from the MBBS curriculum, and what we are going to study, and why this Unani system of medicine. In this medicine we have to study Urdu. What is the reason behind that? That most of the literature or the philosophical concepts are there, and why it is different from the scientific knowledge which we get from the MBBS. So I have prepared a kind of journey which will take you from at least 6000 BC to the present time, and during that journey maybe you will be able to understand the reason why this Unani system of medicine is different, or what are the differences, and what are the different questions which are being put forward by the contemporary medicine people to you, and they ask what course is this. So maybe after this lecture you will be able to answer all those queries, and in your mind also your queries will be cleared. So with that I would like to start my first slide, and that is okay. Just a moment. From here I'm not able to change my slide. Maybe there is some technical issue. Just please wait. मैम प्रेजेंट नाउ पे करके इंटायर स्कैन करेंगे. I think now it's visible. Yes, the first slide is visible, title slide. Okay. So this these are the questions. Okay. One is, what is Unani system of medicine? आप इससे क्या समझते हैं? And what is allopathic system? Ma'am, title slide is visible only. No, it's not moving. Not moving. It's not changing. Not changing, ma'am. Okay. प्रेजेंट नाउ पे एग्जिट करने के बाद प्रेजेंट नाउ पे योर एंटायर स्क्रीन करना होगा. देन वी हैव टू चूज. ओके. विंडो करना है. ए विंडो यस कर दिए. ए विंडो कर दी मैं. ए विंडो करके फिर पीपीटी वाले ऑप्शन पे चले जाना पड़ेगा. Entire window. I have chosen entire window, and after that entire window नहीं, a window only, second option. सेकंड ऑप्शन ए विंडो पे करना पड़ेगा. It's still not changing. No, ma'am. It's not visible even. Then what's the technical? Present now. Choose a window, and then go to the option of PPT. A window. Okay, I have chosen a window, and then I have gone to the my PPT presentation. Now visible. Yes, it's coming up. Okay, now change of the slide. Yes, it's visible now, ma'am. So when I'm changing it to the slide mode, it's not responding. Now is it visible? Yes, ma'am. Now it's changing also. Yes, the first slide is being shown. Second or third slide? No, I am changing the slides from here. It's a second slide, ma'am. Okay. Change it to fourth. Then I have to keep it in the slide mode presentation, I think. Now We are now visible it's second slide. changing? Yes, third slide. Yes, ma'am, changing it. Okay, then I have to keep it in the slide mode presentation. Then it's okay. So let's continue like that. Is that visible there now? Ma'am, yes, ma'am. Okay, let's start without wasting much time because it's already 12:50. So these are the questions, different questions, that what is Unani system of medicine and what is allopathic system of medicine.
and what is the difference you feel. And sometimes we call it tib, sometimes we call it as traditional system of medicine, and sometimes we say it as a Persian medicine is also the same Unani system. Sometimes we say it is an Indian system of medicine. Sometimes we say it is also a Greco-Arabic medicine, Arabic medicine also, and sometimes it is also denoted by the Islamic medicine or prophetic medicine. Sometimes we are also being said as the alternative system of medicine. Someone say that Yunan system is a herbal medicine. Some say that Yunan system is a holistic system of medicine and the complementary system of medicine. So these are the different introductions or the names, the nomenclature by which sometimes we introduce our Unani system of medicine. But why is it so? How is it possible that only one system of medicine, which is the Unani system of medicine, can be called by so many names? When we say tib, it means Unani system. When we say Arabic medicine, it means Unani medicine. So what is the reason behind that? तो इसी में हम अब आगे इसको समझने की कोशिश करेंगे कि how we can equate ourselves with the Persian medicine, or sometimes we call it as alternative system, sometimes we also call it as a natural medicine, sometimes we call traditional system of medicine. तो उसके पीछे जो है वो reason क्या है? Okay, students, you can interrupt me in between also. If you want to ask question by the permission of your coordinators, you can also ask a question in between also. Okay. So in order to understand that actually what is the reason, we have to first of all see the whole picture of the history of medicine, कि how the medical knowledge has evolved, कि कैसे ये मेडिकल या इलाज मुआवजे का जो तरीका है, जो कुछ भी है, वो कैसे इवॉल्व हुआ है और कहाँ से एक्चुअली में फर्स्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और लोगों ने इलाज करना शुरू किया और फिर कैसे डॉक्टर बने और क्या हुआ, उसकी एक होल हिस्ट्री ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द मेडिसिन जो है हमको देखनी चाहिए। और थोड़ा सा हमको रुक रुक करके बीच में जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड है उस पे भी नजर डालनी पड़ेगी कि उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पीरियड में क्या हुआ, क्या डेवलपमेंट्स हुए, मेडिकल नॉलेज में क्या चीजें इंक्लूड होती चली गई और कैसे एक बेसिक जो हमारा मेडिकल नॉलेज है वो कैसे इवॉल्व होकर के आज जिसको सिस्टम को हम देखते हैं वो आज हमारे पास आया। ठीक है, तो उसको हमें उसमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जब बिल्कुल अर्ली टाइम था, है ना, जो अर्ली टाइम्स मींस सिविलाइजेशन या वर्ल्ड की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं थी एंड इट वाज जस्ट डिस्क्रीट सिविलाइजेशंस जो कि ह्यूमन काइंड की मिलती हैं हमको नियर टू द वाटर रिसोर्सेज, जहां कहीं भी वाटर रिसोर्सेज थे वहां छोटी छोटी सिविलाइजेशंस थी। तो उस टाइम में अगर हम कहें कि वहां पे कोई मेडिकल नॉलेज नहीं थी, कोई इंसान कुछ नहीं जानता था, तो आई थिंक दैट वुड बी इनकरेक्ट, बिकॉज ह्यूमन सफरिंग जो है दैट इज द मोटिवेशन और वॉज द रीजन कि इंसान ने कुछ ना कुछ तो किया होगा। ठीक है, जैसे मेरे किसी पास वाले को किसी को दर्द हो रहा है तो ऑब्वियसली उसने उस दर्द को एलिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ किया होगा, बट बिकॉज ऑफ देयर वाज नो प्रॉपर मीन्स टू रिकॉर्ड दैट थिंग, तो आज हमारे पास एग्जैक्टली वो चीज हमें मालूम नहीं है कि उसने किया क्या वहां पे, है ना। तो दैट्स व्हाई वी डोंट नो, बट it is unfair to say कि earlier there were no practitioners, there were no doctors and they knew nothing about the human disease and suffering. ये कहना गलत होगा, they must have been something, but because it is unrecorded, we do not have any record, we cannot know what they were doing at that time, that's why हम उसको नहीं बता सकते अभी। तो कुछ ना कुछ रहा होगा। फिर एक टाइम पीरियड आता है दैट इज द प्रिमिटिव मेडिसिन। प्रिमिटिव मेडिसिन के बारे में हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, लाइक दे वर द केव्स मैन, केव्स में रहते थे, दे हैव डिपिक्टेड देयर फीलिंग्स, देयर थिंग्स, देयर हैपनिंग्स इन द फॉर्म ऑफ द आर्ट ऑन द केव्स। केव्स में उन्होंने उन आर्ट के फॉर्म में उसको कहीं ना कहीं रह गया है। तो वहां से हमको जो इंडिकेशन मिलता है दैट इंडिकेशन इज दिस कि इन द प्रिमिटिव टाइम ऑल्सो, in the primitive times people were also
treating the humans who must have suffered from different disease. और वहां पे हमको description मिलता है कि that was bit superstitious nature, like they believed कि जो इंसान किसी भी problem में है, किसी disease में है, that is occurring because of the some punishment from the god, that is from the wrath of the god, or that is occurring because of the some bad effect of the planets, or that's occurring because of some different kind of bad planet effect, or some spirit must have entered into that human body, कोई spirit उसके body के अंदर आ गई है, इसकी वजह से उसको ये problem है. तो वो उनका basic understanding primitive medicine में यही थी. और वो ट्रेडिशनल हीलर्स कहलाते थे, जो लोग ये सब काम करते थे कि बैड इफेक्ट ऑफ प्लैनेट हटा दें, पनिशमेंट आ गया है उस पनिशमेंट का इफेक्ट हटा दें. जो हमको मिलता है केव्स में, वो मिलता है कि वो दे वर कॉल्ड एज शमन्स, उनको शमन्स कहा जाता था. सोसाइटी में उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी. जो कुछ भी प्रॉब्लम होती थी, इंसान कभी भी बीमार पड़ता था, उनको बुलाया जाता था. सो प्रिमिटिव मेडिसिन इस तरह की थी. ओके, देन कमिंग टू द this part of the century, that is around 6000 BC, which was the Mesopotamian medicine or Babylonian medicine. यहाँ पर हमको जो चीजें मिलती हैं वो मिलती हैं लाइक कोड ऑफ हम्मुरबी हमको एक मिलता है. कोड ऑफ हम्मुरबी जो है ये एक स्टोन पे कार्व्ड एक डॉक्यूमेंट टाइप का है. एंड बिकॉज द किंग ऑफ हम्मुरबी जो था, उसने इसको इनकार्व करवाया था ऑन अ स्टोन, एंड इट कंटेन द रूल्स एंड रेगुलेशंस के हाउ अ डॉक्टर शुड ट्रीट अ पेशेंट, उसको कितने पैसे लेने चाहिए, उससे कितने पैसे नहीं लेने चाहिए, और इलाज के बाद क्या करना चाहिए, इलाज से पहले का क्या किया जाना चाहिए. बेसिकली जो हिपोक्रेट अभी हम लेते हैं, उस हिपोक्रेट के ओथ से पहले इस कोड ऑफ हम्मुरबी के बारे में भी जिक्र होता है. इट कम्स अंडर द एथिक्स इन द मेडिकल फील्ड. तो उसमें एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इसका प्लेस है, हिस्टोरिकल अपनी इम्पोर्टेंस है, बिकॉज एक किंग ने रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब किए थे रिगार्डिंग द प्रैक्टिशनर्स और मेडिसिन के प्रैक्टिशनर्स के लिए उसने रूल्स जो थे वो इंस्क्राइब करवाए थे. तो वो कोड ऑफ हम्मुरबी हमको मिलता है. और मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस कुछ मिलते हैं, दवाएं मिलती हैं कि इस जड़ी बूटी से, मे बी बिकॉज वो जड़ी बूटी इज नॉट रिकॉग्नाइजेबल, हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं क्या नाम है उनका. उन्होंने जो अपने पिक्टोरियल राइटिंग्स में लिखा है. क्यूनिफॉर्म राइटिंग्स के बारे में आप लोगों को कुछ मालूम होगा? एनी स्टूडेंट, क्यूनिफॉर्म राइटिंग क्या होती है? किसी को मालूम है कुछ? ओके, सो बेसिकली क्यूनिफॉर्म राइटिंग्स क्या है? दीज आर द राइटिंग्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ द आर्ट या पेंटिंग. फॉर एग्जाम्पल दे वॉन्ट टू से अ मैन इज कमिंग, तो अ मैन इज बीइंग ड्रॉन ऑन दैट. सो ये क्यूनिफॉर्म राइटिंग उस टाइम में थी. और कुछ स्टोन्स मिलते हैं, कुछ चीजें मिलती हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि इवन इन द 6000 BC people were treating and the people were getting ill and they were treated by some important or eminent personalities like this. Okay, then this Chinese medicine, this era starts dates back to 2700 BC around. हमको इस मेडिसिन के हमको लिटरेचर मिलता है, रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं कि इस टाइम में एक चाइनीज मेडिसिन थी और आयुर्वेदिक मेडिसिन थी विच डेट्स बैक टू 5000 BC के. इतने पुराने रिकॉर्ड्स हमारे पास मिलते हैं. मेंशन मिलता है कि लोगों ने जो था इलाज मुआवजा कर रहे थे. बेसिकली ये वो रीजन था, एशिया का रीजन था, जो कि आपका वहां पर एशिया में मिलता है. और वो वाला जो आपका मेसोपोटामियन रीजन है, वो दैट इज इन द टिग्रिस एंड यूफ्रेट, है ना. तो टिग्रिस एंड यूफ्रेट में भी हमको मिलता है, लोग इलाज मुआवजा कर रहे थे, ट्रीट कर रहे थे लोगों को. और इधर फिर एशियन रीजन में हमको मिलता है कि ये चाइनीज मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन जो थे वो भी लोगों को ट्रीट कर रहे थे. और उनके अपने प्रपोज एक पूरा अप्रोच थी टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट ऑफ द humankind. Like Chinese medicine used to say that a man gets ill because of the energy blockages.
According to Chinese medicine, there is a continuous flow of energy from center of the heart towards the body, and whenever there are the blockages in that particular area, that part gets ill. So the same kind of theories were proposed by the Ayurvedic medicine. Like they used to say that there are different doshas. When doshas get imbalanced, the man gets ill. So these were the ways or approaches in which the disease and the treatment was understood. Now the Greek medicine. So this was the era of around 460 to 136 BC. Here we can find there were some prominent personalities like Asclepius or Asclepius, as it is transliterated. So Asclepius around 2000 BC. Very much details we can found if we go into the history or the background. Even the the symbol of doctor which we used to put on our cars or in different areas when we want to say that yes, we are a doctor, we used to put a symbol of a staff and a snake which is entwined around that staff. So that symbol is of Asclepius. So that symbol is taken from Asclepius. And another eminent personality is Hippocrates. Basically, what Hippocrates has done to the medical world or the medical knowledge was that he completely declared that the human disease does not occur because of any kind of punishment or any kind of spirit or any kind of the bad effect of the planet. Rather, the disease occurs due to the disbalance in the humors of the body. And humors are basically developed or formed to the diet or the drink और अरकान, इनसे जो है वो हमारे खिल्त या ह्यूमर्स बनते हैं. एंड व्हेन देयर इज अ डिसबैलेंस इन दैट ह्यूमर, we get ill. And he completely discarded the theory of superstition, which was like के उसमें जिसमें के spirit, bad effect of the planet and all these things, they were totally discarded and discredited. So the contribution of Hippocrates to the medical knowledge is great. That's why even in this Western scientific medicine, he is considered and accepted as the father of the medicine. ठीक है, उसको माना जाता है कि वो father of the medicine है. और उस father of medicine ने क्या दिया था, propose किया था humoral theory. और वो first man था who has written the Corpus Hippocratum, a book in which he used to write what type of cases he has seen, what kind of diseases he has seen, and what should be done, what treatment should be done to that particular disease. So this book is known as Corpus Hippocratum. Obviously it has been translated. The language of that time was not English, so neither Urdu, so it has been translated and now we know it as Corpus Hippocratum. And the things which he has mentioned related to the treatment and the disease are there in this book. And at that time there was also a very huge museum and the library which has almost a collection of the 70,000 books at that time or at that era, and it was in Alexandria in the Egypt. So this was the kind of the medical knowledge which we can see at the time or the era of 460 to 136 BC. Now comes the time period between 500 AD to 1500 AD. Some of the middle time has been skipped just to make you understand also. So that was the Roman era and then it was the Egyptian era. So I have skipped that part. But just to make you people understand, now coming back to the period between 500 AD to 1500 AD, what kind of developments took place in the medical knowledge in this period.
Actually, this period is known as the Dark Ages by the Europe. Europe called this period as a Dark Age, and we also know it as a Middle Ages time period. यहाँ पे क्या हुआ था इस era में there was the fall of the Roman Empire, because Roman Empire जो था बहुत बड़ा था उस टाइम में. बस दो ही empires थे जो डोमिनेट करते थे पूरे वर्ल्ड में, दैट वाज रोमन एम्पायर एंड पर्शियन एम्पायर. वो पूरे कॉन्टिनेंट, मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्टिनेंट जो था वो इन्हीं के पास था. लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ये रोमन एम्पायर जो था कोलैप्स हुआ, एंड द होल यूरोप अंडरवेंट पीरियड ऑफ डार्क एजेस, है ना, क्योंकि उसमें वहां पे बहुत ज्यादा डिजीजेस भी हुई थी, बहुत ज्यादा एंडेमिक पेंडेमिक सब फैला था वहां पे, एंड होल यूरोप वाज ravaged by diseases, and it was a kind of dark age because historians call it as a dark age. Then at that time period what happened, it was the Arabs or the Mediterranean region जो था वहां पर Arabs ने क्या करना शुरू करा, whatever medical knowledge was available to them, they keep on translating it into the Arabic, because उससे पहले prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam went came there in 600 AD. तो उनका जो एक saying थी कि you get the knowledge wherever you can, even if you have to travel to the China, you go there and make yourself more literate. तो वहाँ के जो अरब वर्ल्ड था was very keen कि कहीं से भी उसको नॉलेज मिले, कैसी भी नॉलेज मिले, वो आगे बढ़े, पढ़े. तो उस सिलसिले में उसने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले तो जो ऑलरेडी अवेलेबल मटेरियल था दैट वाज ट्रांसलेटेड इनटू अरबिक. तो जितना ग्रीको अरब रोमन मेडिकल लिटरेचर था दैट वाज ट्रांसलेटेड इनटू अरबिक एज वेल एज सम पर्शियन आल्सो, है ना. एंड दे themselves contributed, और उन्होंने सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं करा, उन्होंने भी बहुत ज्यादा from 500 AD to 1500 AD they have contributed a lot to the medical knowledge. बहुत ज्यादा उन्होंने contributions करे हैं. और उस वक्त वहां पर डमस्कस, कायरो, बगदाद सब जगह हॉस्पिटल तक खोल लिए थे उन्होंने. एंड इन बगदाद there were around 60 hospitals, and in Cairo there were around 33 hospitals. And some prominent names like Abu Bakr Razi, or what he did, he also had a lot of contributions. अभी आप लोग को फर्स्ट ईयर में एक सिलेबस में आपका एक टॉपिक होता है दैट इज तारीख तिब, उसमें आप लोग इन सब के बारे में पढ़ेंगे. तो देर आर लॉट ऑफ एमिनेंट पर्सनालिटीज which have contributed to this medical knowledge, like अबू बकर राजी हैं, इन्होंने मर्क्यूरियल परगेटिस बनाया था. चिल्ड्रंस डिजीज पे उनका बहुत काम है, स्पेशली मीजल्स एंड स्मॉल पॉक्स के बीच का डिफरेंस क्लियर किया. एंड देन ही इज ऑल्सो इन्वेंटेड सम सॉर्ट ऑफ वैक्सीनेशन, बिकॉज व्हाट ही यूज्ड टू डिड कि जो स्कैब्स होते थे स्मॉल पॉक्स का, ही यूज्ड टू इंट्रोड्यूस इनटू द स्किन ऑफ द हेल्दी चाइल्ड, एंड देन ही यूज्ड टू से दैट दीज चाइल्ड डिडंट गेट द डिजीज. तो एक सॉर्ट ऑफ वैक्सीनेशन भी ट्राई किया था. और इब्ने सीना जो है उसकी तो अगर हम उसके बारे में बताने के लिए आए तो मे भी पूरा 1 घंटा उसी में ही निकल जाएगा, और जो है हमारी बात पूरी नहीं हो पाएगी. तो उसने अल कानून फी तिब लिखी, विच इज एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द मेडिसिन. और इस टाइम में फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में बहुत काम हुआ. सीरप्स, ऑयल्स, पोल्टिस, प्लास्टर्स, अर्कियात, एरोमेटिक वाटर्स, बहुत सारे सब डेवलप हुए, ठीक है. और बहुत सारी डिफरेंट हर्बल ड्रग्स या डिफरेंट ड्रग्स जो कि हर्ब्स, एनिमल एंड मिनरल ओरिजिन की थी, दे वर इंट्रोड्यूस्ड, दे वर स्टडीड, एंड दे वर गिवन इन डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज. तो बहुत ज्यादा जो अरब, ये जो आपका मेडिटेरेनियन रीजन है विच इज लाइक द अरबिक एंड द पर्शियन स्पीकिंग पीपल, उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया. वो एक पूरा अगर हम उसके बारे में लिखें तो बहुत ज्यादा डिटेल आ जाएगा. तो अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे उसको, बस यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि ये इस तरह से हुआ था. एंड दिस इज द George Sarton. He's a very prominent, eminent historian. He put forward in his book A Guide to History of Science, he has given this diagram about the flow of the knowledge, that how the knowledge had been flown or has been shared from this place to that place. Here you can see that the Egyptian, Babylonian,
and Iranian and Indian knowledge also, है ना, Indian knowledge also, that of the Asian continent, वहां से भी सब knowledge majority Greek में translate हुई, ठीक है, और फिर translate होके फिर ये Arabic में आई, majority जो था वो Arabic Persian में translate हो गया, and then from Arabic आफ्टर 1500 AD, ठीक है, यहां तक तो 1500 AD है, एंड आफ्टर 1500 AD द मेडिकल नॉलेज वाज मोस्टली ट्रांसलेटेड इनटू लैटिन एंड हेब्रियो, एंड दिस लैटिन medical knowledge was further translated into Germany, French, English, Italian, Spanish, in these regions. Means the Arab, whatever Arab world has contributed, it was first translated into the Latin, and then it was translated into German, French, English, Italian and Spanish, ठीक है, इन लैंग्वेजेस में वो ट्रांसलेट हो गया. लाइक जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द मेडिसिन थी इसकी, इब्ने सीना की, जिसको कहा जाता था, वो आपको स्पेनिश में भी मिल जाएगी, फ्रेंच में भी मिल जाएगी, एंड दैट्स व्हाई वी आल्सो सी कि व्हाट दे हैव डन, दे हैव ट्रांसलेटेड या ट्रांसलिटरेटेड द नेम्स आल्सो, उन्होंने नाम को भी चेंज कर दिया. लाइक जो आपके अब ये जो आपके जालिनूस है, ही सेड एज द गैलन, ठीक है, और आपका इब्ने सीना जो है उसको एवेसीना, तो इस तरह से जो उनके नाम थे दैट वर आल्सो चेंज्ड. Then comes this the rise of what happened after 1500 AD, ठीक है, 1500 AD के बाद क्या चीजें हुई, 1500 AD के बाद what happened कि कहा जाता है कि एज ऑफ इंडिविजुअल साइंटिफिक एंडीवर वाज डेवलप, और ये वो टाइम पीरियड है कि द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज टेकिंग प्लेस, अ लॉट ऑफ चेंजेस वर टेकिंग प्लेस इन द एट द लेवल ऑफ द वर्ल्ड में, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल उसके बैकग्राउंड से इतने सारे काम हो रहे थे, चेंजेस आ रहे थे, तो मेडिकल नॉलेज में भी चेंजेस आ रहे थे. एंड कुछ चेंजेस में फिर ये हुआ कि ही वाज अ प्रोमिनेंट फिजिशियन, पैरासेल्सस, यूरोप के. व्हाट ही डिड, ही पब्लिकली बर्न्ड अल कानून, उन्होंने अल कानून जो किताब इब्ने सीना की लिखी हुई थी, विच रूल्ड द वर्ल्ड फॉर ऑलमोस्ट 1500 years. जालिनूस जो था, गैलन जो था, उसने एनाटॉमी पे 100 AD के अराउंड जो उसकी एनाटॉमी की बुक थी, वो उसके अगेंस्ट फिर उसमें लिखा गया कि नहीं, अब ये एनाटॉमी इन्होंने गलत लिखी है, बट nobody was there to challenge it for around 1500 years. Means whatever he has told about the human body, इसका structure, that was studied in every part of the Europe and everywhere, that was studied for almost 1500 AD. लेकिन ये 1500 AD के बाद से ये चेंज आया कि उस नॉलेज को लोगों ने पब्लिकली डिनाइल में आए उस नॉलेज के, ठीक है, और ये वो टाइम था जिसमें कहा जाता है पीरियड ऑफ रिनाइसेंस फ्रॉम द डार्क एज, की मीन्स यूरोप जो था वो डार्क एज से बाहर आ रहा था, तो वहां पर ये सब काम हुए. एंड देन ये जो एक और फिजिशियन है फ्रैकेस्टोरियस, उसने दी थ्योरी ऑफ कंटेजियन. अभी तक 1500 AD से पहले जो अंडरस्टैंडिंग थी अबाउट द ह्यूमन बॉडी एंड द ह्यूमन डिजीज वाज दैट कि इम्बैलेंस की वजह से जो है वो डिजीज क्रिएट होती है. अब बकर राजी जो था उसने दिया था कि इट मे बी सम काइंड ऑफ type of external substance which may have caused the disease, लेकिन that is called the miasmic theory also कि गलत हवा, गलत पानी, गलत खाना खाने से जो है या गंदा खाना खाने से बीमार पड़ जाते हैं, बट इट वाज नॉट स्पेसिफिक. ये फ्रैकेस्टोरियस ने स्पेशली दी अ थ्योरी ऑफ कंटेजियन कि एक से दूसरे को लग जाती है, वो कोई चीज है वो लग जाती है और उसकी वजह से इंसान बीमार पड़ता है. एंड्रियस वेसालियस जो था उसने गैलन के एनाटॉमिकल एरर्स ढूंढे और कहा कि ये बुक जो है वो हमको सही ह्यूमन एनाटॉमी नहीं बता रही है. एम्ब्रियोस पैर जो थे उनको कहा गया ही इज द फादर ऑफ सर्जरी, काफी सर्जरीज स्टार्ट कर दी उन्होंने. विलियम हार्वे के बारे में कहा गया कि उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन इन्वेंट करा.
ल्यूवेनहुक जो थे उन्होंने माइक्रोस्कोप डेवलप करा, और एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने 1796 के अराउंड स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन करा. दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द वेस्टर्न साइंटिफिक मेडिसिन के. स्लोली एंड ग्रेजुअली how things moved from the concept of disease caused by humors or food or the air or water, वो concept जो था वो थोड़ा थोड़ा change होना शुरू हुआ, और कहा गया कि अब जो है वो साइंटिफिक एंडीवर और साइंटिफिक टाइम आता चला जा रहा है. ठीक. और सबसे बड़ा जो एक चेंज था दैट टोटली चेंज द मेडिकल नॉलेज और everything that was the germ theory of the disease, because microscope was discovered. तो उसके बाद slowly and gradually बहुत सारे उसके अंदर और भी developments आए, और and finally by 1873 ये जो थे आपके लुइस पास्चर, he proposed a theory के जो disease है that is caused by a germ. And slow and one by one what happened, different germs were also being discovered. वो डिस्कवर कर लिए गए कि एंथ्रैक्स किस बैक्टीरिया से होता है, गोनोरिया किस बैक्टीरिया से होता है, टाइफॉइड किस बैक्टीरिया से होता है, निमोनिया किस बैक्टीरिया से होता है, ट्यूबरक्लोसिस किस बैक्टीरिया से होता है, और डिप्थीरिया किस बैक्टीरिया से होता है. ठीक है. तो स्लोली एंड ग्रेजुअली द कंसेप्ट ऑफ द हाउ डिजीज इज अकरिंग वो चेंज होता चला गया. उन्होंने कहा देयर इज नथिंग लाइक दैट के ह्यूमर्स हैं, कि बॉडी में एनर्जी का फ्लो है, कि दोषाज हैं, ये सब कुछ नहीं है. एवरीथिंग इज अ जर्म. ठीक है. आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? स्टूडेंट्स ओके. चलिए मैम असल में बहुत सारे योर वॉइस इज इकोइंग, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. ओके चलिए हम ये मान के चलते हैं कि 1600 एडी तक जो मेडिकल नॉलेज का जो पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, एंड ये कहा गया कि मेडिसिन शेड द रोब ऑफ सुपरस्टिशन एंड पुट द रोब्स ऑफ साइंटिफिक नॉलेज. एक्चुअली मैम सारे इनपुट्स हैं यहाँ पे, तो इको प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए स्क्रीन पे आपको देख रहे हैं. अभी ये आंसर करेंगे तो इको हो जाएगा. अच्छा अच्छा. ओके ओके ठीक है. ओके ओके लेट्स कंटिन्यू. ठीक है. तो जो है इसमें मेडिसिन शेड द रोब्स ऑफ सुपरस्टिशन एंड पुट द रोब्स ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, ऐसा हुआ, ये कहा जाता है इस उसमें. तो अब ये साइंटिफिक टर्म एक नया इजाद हुआ कि ये साइंटिफिक नॉलेज है. ठीक है. उससे पहले तक किसी ने साइंस के बारे में नहीं सुना था, and nobody was talking about science, what is science. But now what happened, एक term आया that was कि scientific knowledge. ठीक है. तो ये scientific knowledge होती क्या है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि सिर्फ चेंज जो था वो मेडिकल नॉलेज में ही नहीं आ रहा था. ओवरऑल जितनी भी दुनिया की जितनी नॉलेजेस थी रिगार्डिंग द एस्ट्रोनॉमी एंड अदर थिंग्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो सब जो थी वो उनके अंदर चेंजेस आए थे फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम एरा टू एरा. हम तो बात कर रहे हैं सिर्फ साइंस उसकी, मेडिकल उसकी, लेकिन उन सब में भी चेंजेस आए थे. तो हम बात करेंगे कि साइंटिफिक नॉलेज फिर क्या है, किस चीज को कहा जाने लगा कि ये साइंस है. ठीक है. तो इट वाज दिस कि साइंटिफिक मॉडल कहा गया कि नॉलेज में एक चीज होती है विच इज द साइंटिफिक मॉडल. और उन्होंने कहा कि कोई भी नॉलेज विच कम्स टू अस थ्रू दिस मॉडल, जो इस मॉडल से हमारे पास जो नॉलेज आएगी हम उसको ही इनकॉर्पोरेट करेंगे, हम उसको ही साइंटिफिक कहेंगे, और साइंटिफिक नॉलेज ही अब आगे बढ़ेगी. ये जो एब्स्ट्रैक्ट बातें हैं तो वो उन एब्स्ट्रैक्ट बातों को अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. अगर वो एब्स्ट्रैक्ट चीजें और जो हवा में कही हुई बातें हैं, इफ दे फुलफिल दिस क्राइटेरिया, अगर वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तब तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे और हम कहेंगे कि यस दिस इज अ साइंटिफिक नॉलेज. लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो हम उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे. फॉर एग्जाम्पल दिस साइंटिफिक मॉडल वाज के
पूरा डिवीजन हो गया नॉलेज का इनटू टू डिफरेंट एस्पेक्ट, दैट वाज साइंटिफिक नॉलेज एंड द अनसाइंटिफिक नॉलेज। तो उसमें क्या हुआ, अब सबसे पहला उन्होंने कहा ऑब्जर्वेशन, ये स्टेप जो है उसकी क्या होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट एंड द रिजल्ट, है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू से, मेरी एक वो है साइंटिफिक या एक कंट्रीब्यूट कर रही हूँ मैं नॉलेज में कोई एक चीज के, प्लांट नीड्स द सनलाइट टू ग्रो, ये मैं एक बात जो है प्रपोज कर रही हूँ, ठीक है, नॉलेज में इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। तो फिर व्हाट हैपेंड कि ये चीज मैंने ऑब्जर्व करी कि जो अंधेरे में रखे हुए प्लांट होते हैं वो मर जाते हैं, दैट वाज माय ऑब्जर्वेशन। देन आई प्रिपेयर्ड अ हाइपोथेसिस कि प्लांट जो है कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अ सनलाइट। देन अगेन व्हाट आई डिड, आई मेड एन एक्सपेरिमेंट ऑल्सो, मैं एक एक्सपेरिमेंट भी मैंने बनाया। उस एक्सपेरिमेंट में व्हाट आई डिड, आई केप्ट प्लांट इन अ ब्लैक बॉक्स एंड अ प्लांट इन ओपन box, and then both of them were exposed to sunlight. What happened, the black box, because of the black color, was not given the sunlight, और दूसरा plant जो था उसको sunlight मिली, and after 1 week what we saw कि the plant which didn't get the sunlight died. So finally it was concluded that plant need sunlight for the development or for the growth, and plant cannot survive without sunlight। जो मैंने hypothesis बनाई थी वो prove हो गई। So this was how scientific model knowledge was created। कोई भी आप नॉलेज में एडिशन कर रहे हैं तो विद एक्सपेरिमेंट, और वो एक्सपेरिमेंट ऐसा हो कि इट कैन बी डन एट एनी प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी मुकाम पर अगर हम उस एक्सपेरिमेंट को करें, दैट कुड बी वेरीफाइड और रिपीटेबल वहां पर होना चाहिए वो। तो अब आप ये वाला एक्सपेरिमेंट दुनिया में कहीं भी करिए आपको यही रिजल्ट मिलेगा, दैट शोज कि वो ऐसा ही है कि प्लांट को सनलाइट की जरूरत पड़ती है। तो उन साइंटिफिक नॉलेज क्या हुई कि until unless we are able to prove something by some evidence, किसी एविडेंस के जरिए जब तक हम किसी चीज को प्रूव नहीं कर सकते हम उसको साइंटिफिक नॉलेज नहीं कहेंगे, है ना, हम उसको अनसाइंटिफिक नॉलेज कहेंगे। लाइक ये था उसका जो एक प्लान होता है, साइंटिफिक मेथड किसको कहते हैं, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस जनरेशन, देन द एक्सपेरिमेंट, देन द फाइनल कंक्लूजन कि हमने क्या रिजल्ट निकाला। अगर वो नहीं आया सेम तो फिर रिवाइज करके देखेंगे उसको एक्सपेरिमेंट को, एंड देन दिस विल कंटिन्यू। लेकिन अगर वो प्रूव हो जाता है, ठीक है, अगर इट इज सपोर्टेड बाय द एविडेंस, हमने जो एक्सपेरिमेंट क्रिएट करा, जो एविडेंस दिया, उससे वो बात प्रूव हो रही है, तो देन इट बिकम्स द साइंटिफिक थ्योरी, वो साइंटिफिक थ्योरी बन जाती है। और वो साइंटिफिक थ्योरी अगर वेरीफाइबल है इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में जो चाहे वो वही एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके वही रिजल्ट पा रहा है, देन इट इज इनकॉर्पोरेटेड एज द साइंटिफिक फैक्ट, फिर वो साइंटिफिक फैक्ट बन जाता है ना। तो इसीलिए जो डार्विनिज्म को आज तक थ्योरी क्यों कहा जाता है, उसको साइंटिफिक फैक्ट क्यों नहीं कंसिडर कर लिया था, थ्योरी इसीलिए कहा जाता है कि वो अभी तक थ्रू आउट द वर्ल्ड वेरीफाइबल नहीं हो पाया, उसने जो भी एविडेंस दिए वो थ्रू आउट द वर्ल्ड वेरीफाइबल नहीं थे, तो दैट्स व्हाई इट इज स्टिल अ थ्योरी। तो दिस इज व्हाट वाज नोन एज द साइंटिफिक। एक और एग्जांपल, लाइक देयर वाज अ डिस्कवरी वाज डन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। तो पहले हाइपोथेसिस, लाइनस पॉलिंग और फ्रांसिस क्रिक जो थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने कहा डीएनए जो है वो ट्विस्टेड स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर है, विच इज द हेलिकल स्ट्रक्चर। तो उसको प्रपोज करने के लिए फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये हाइपोथेसिस प्रपोज करी। फिर उन्होंने क्या किया, एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न जो था उसका फोटो लिया, ठीक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन टू प्रोड्यूस फोटो, ये उनका एक्सपेरिमेंट था। क्रिस्टलाइज डीएनए को उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन किया, फोटो निकाला एक उसका, एंड फाइनली इट वाज एनालाइज्ड के जो डिफ्रैक्शन पैटर्न आया उसने बता दिया कि उसका ट्विस्टेड एक्स शेप स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब कि डीएनए हमारा जो होता है वो हेलिकल है। नाउ दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी क्रिएटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है, वो उसको दुनिया का कोई भी कोने में वो अगर एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो यही रिजल्ट मिलेगा। सो दैट्स व्हाई इट बिकेम अ साइंटिफिक फैक्ट कि डीएनए जो होता है ह्यूमन बॉडी में सेल्स में, तो वो जो होता है उसका हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, एंड उनको नोबेल प्राइज भी मिला इन द 1962।
तो ये डिफरेंस होता है, ठीक है। हाउ मच टाइम आई हैव गॉट, Tanveer, how much time have been left? Okay, I'm continuing. So conceptual philosophy जो होती है और scientific method में यही difference होता है कि मैम conceptual, एम्पल ऑफ टाइम, कंटिन्यू इट मैम। ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये जो कंसेप्चुअल फिलॉसफी होती है वो आपको क्या बताती है, वो कहती है आई विल एक्सेप्ट इट इफ यू आर एबल टू गिव मी अ गुड लॉजिक। अगर आप किसी चीज के लिए कोई बहुत अच्छा लॉजिक दे पा रहे हैं तो इट विल बी एक्सेप्टेड एज अ नॉलेज। तो 1500 एडी से पहले यही था कि जो नॉलेज का फॉर्म था, तो नॉलेज का फॉर्म ऐसा ही था। people used to accept the knowledge if you are able to give a perfect logic and reason for certain happening in the natural world। आपकी किसी चीज को लेके कुछ अंडरस्टैंडिंग बनी, आपके सवाल आए आपके दिमाग में और आपने कहा कि ये चीज ऐसी है, और उस ऐसी चीज कहने के पीछे आप कुछ एक परफेक्ट लॉजिक आप दे पाए, तो उसको कहा गया कि ओके, उस बात को एक्सेप्ट कर लिया जाता था और वो नॉलेज का एक पार्ट बन जाती थी, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, जो हमारी जो अर्लियर नॉलेज थी ये सारी 1500 एडी से पहले की, जो जिसमें कि हिपोक्रेट भी आ जाता है, जाले, ऐसा नहीं था कि वो लोग उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे या एविडेंसेस क्रिएट नहीं कर रहे थे, लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, उन एविडेंसेस को वो रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे। और जो मेथोडोलॉजी थी वो मेथोडोलॉजी ये थी ही नहीं कि आप एविडेंस भी क्रिएट करिए और फिर आप कहिए उसको। वो तो मेथोडोलॉजी तो यही थी कि अगर आप उसको किसी दलील से साबित कर सकते हैं तो आप उसको वो पर्टिकुलर रीजन दे दीजिए और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, अनटिल अनलेस कोई दूसरा इंसान आए और वो आपके निगेटिव में कुछ और उसकी दलील दे, तो वो फिर डिस्क्रेडिट हो जाएगा आपकी दलील। तो जब तक उसको कोई डिस्क्रेडिट नहीं करेगा, जो मैंने बात प्रपोज करी है वही चलती रहेगी। तो इसको कहते हैं लॉजिक एंड रीजनिंग, वो जो कि पूरा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी है हमारे यहाँ मंतिक फलसफा, जो यूनानी ग्रेजुएट्स को बताया जाता है। तो दिस वाज इट कि पहले की नॉलेज जो थी उसके अंदर मंतिक फलसफा था, और साइंस ऐसा नहीं था कि मंतिक फलसफा था तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल इब्ने सीना से जब कहा गया कि कौन सा जो था, सॉरी राजी का ये एक्सपेरिमेंट है कि उसने कहा गया कि कौन से एरिया में जो है वो खोला जाए, अस्पताल खोला जाए, ठीक है। तो उसने क्या किया कि उसने जो गोश्त के टुकड़े थे वो उसको शहर चूज करना था, कौन सा शहर सही है, तो उसने कुछ गोश्त के टुकड़े दोनों शहर में टंगवा दिए ओपनली, और फिर देखा जिस शहर में वो जो गोश्त के टुकड़े थे वो जल्दी फर्मेंट हो रहे थे, जल्दी पुट्रीफाई हो रहे थे, तो इट शोड कि वहां की एयर क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं है, ठीक है। और जहां पे कम हो रहे थे उसका मतलब वहां की अच्छी है, तो उसने कहा कि ये शहर जो है वो चूज कर लिया जाए, ठीक। तो दिस काइंड ऑफ एविडेंसेस एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर, प्लीज। ठीक है, तो इस तरह के एविडेंसेस जो थे वो क्रिएट किए जा रहे थे। जस्ट प्लीज गिव मी। Okay, sorry for the inconvenience. So let's continue. ठीक है, तो कंसेप्चुअल फिलॉसफी और साइंटिफिक मेथड में इस तरह से जो हमारी पूरी नॉलेज थी वो उसका डाइकोटोमी और द डिवीजन हुआ, एंड वन टाइप ऑफ नॉलेज वाज कॉल्ड एज अनसाइंटिफिक नॉलेज एंड द अदर टाइप ऑफ द नॉलेज वाज कॉल्ड एज द साइंटिफिक नॉलेज। ठीक है, आई होप अब ये आपका डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा। ये जो है हमारे यहाँ भी देखिए, जैसे यूनानी में भी जो चीजें मिलती हैं तो उसकी
अंडरस्टैंडिंग आप देखिए वो भी इसी तरह की थी. लाइक दिस इज द कंसेप्ट विच वाज गिवन बाय द इब्न रुश्द. ही वाज आल्सो अ फिजिशियन एंड एमिनेंट पर्सनालिटी ऑफ द अरेबिक मेडिसिन. उसने भी यही कंसेप्ट दिए कि वेन एवर इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट द नेचर और किसी चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो 3 थिंग्स यू मस्ट केप्ट इन माइंड, दैट इज व्हाट, व्हाई एंड हाउ. कोई चीज जो है वो क्या है इसके ऊपर देखा जाए, फिर वो चीज वो क्यों है और कैसे है, वो चीज कंटिन्यू कैसे कर रही है. तो जब तक हम इन 3 का आंसर करेंगे तभी हम उस चीज के बारे में समझ पाएंगे. तो ये भी एक साइंटिफिक तरीका है कि किसी भी चीज को जानना, लेकिन वो इस तरह से नहीं दिया जाता था. ठीक है, जो भी है अगर आपने परफेक्ट रीजनिंग दे दी तो वो बात मान ली जाती थी. फॉर एग्जाम्पल यूनानी मेडिसिन हैज सेड कि ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ द 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स. बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो उसके 4 ही हैं. तो ये बात के लिए उन्होंने दलील दी बिकॉज किसी भी चीज को पकाने के लिए जो है वो एक मटेरियल चाहिए होता है. तो वो मिट्टी होती है, फिर उसको पानी चाहिए होता है, फिर उसको जो है आग चाहिए होता है उसको एक पर्टिकुलर शेप में वो करने के लिए. तो उन्होंने कहा यही 4 चीजें रिक्वायर्ड है, हवा, पानी, मिट्टी. तो जो है यही 4 चीजें बेसिक चीजें हैं, उन्हीं से ही जो है ह्यूमन बॉडी भी बनी है. तो फिर उस बात को एक्सेप्ट कर लिया गया. ठीक है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट या एविडेंस बनाया नहीं गया. जो रीजनिंग उन्होंने दी वो रीजनिंग परफेक्ट लगी एंड दैट वाज एक्सेप्टेड एज अ पार्ट ऑफ द नॉलेज. तो इस तरह से चीजें जो है वो समझी जाती थी. अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ 1920th सेंचुरी का अगर हम सफर देखें तो यहाँ पर भी क्या हुआ, स्लोली एंड ग्रेजुअली वो जो हमारा जो मेडिसिन थी जब आप उसको बिल्कुल डिसरिगार्ड कर दिया गया कि दिस इज टोटली अनसाइंटिफिक, और एक पैटर्न चला कि अब हम साइंटिफिक तरीके से ही काम करेंगे. और उसमें भी फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली बहुत सारे चेंजेस जो थे वो आने लगे. लाइक क्या हुआ, पहले तो मेडिसिन का ही 2 हिस्सों में डिवीजन हुआ, क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन. ठीक है, फिर उसके बाद जो था वो एंटी रेबीज ट्रीटमेंट आ गया, एंटीसेप्टिक्स डेवलप होते चले गए, डिसइंफेक्टेंट डेवलप हो गए. दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक 1928 में पेनिसिलिन आ गया, जो अभी तक तो जर्म्स डिस्कवर हो रहे थे, फिर उसके बाद पेनिसिलिन भी आ गया कि वो जर्म्स को खत्म कर सकता है. बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीजेस जो कि एक बहुत बड़ा मुश्किल बनी हुई थी दुनिया के लिए. लोग कैसे मर जाते थे, कॉलरा हुआ मर गए, टाइफाइड हुआ मर गए, स्मॉल पॉक्स हुआ मर गए. ठीक है, तो लोग इतनी छोटी छोटी जो एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीजेस थी उनसे मर जाते थे. तो वो बिल्कुल चेंज हो गया, पैटर्न ऑफ डिजीज बिल्कुल चेंज हो गया. वो डिजीजेस जो थी वो बिल्कुल क्योर होने लगी. ठीक है, तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट जो था ये साइंटिफिक वेस्टर्न साइंटिफिक मेडिसिन ने जो था वर्ल्ड को दिया. तो उनका इस क्रेडिट को भी मानना चाहिए कि ओके एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ जिसकी वजह से इंसान छोटी छोटी बीमारियों से मर जाता था, वो जो थे उन्होंने उनके पास उनका जवाब आने लगा. और वेस्टर्न साइंटिफिक मेडिसिन जो थी वो एक बिल्कुल टॉप ऑफ द वर्ल्ड में मानी जाने लगी. ठीक है, कि यही इलाज मुआवजा हो सकता है. लेकिन क्या हुआ, उसके साथ साथ कुछ डिजीजेस का पैटर्न भी चेंज हुआ. लाइक कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस जो कि जर्म के ऊपर बेस नहीं थी, उन डिजीजेस ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया. लाइक डायबिटीज, ठीक है, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस वो जो थी उन्होंने इमर्ज होना शुरू हो गया. वो ज्यादा उन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया ह्यूमन सोसाइटी को. लाइक उसमें फिर सल्फर ड्रग्स भी डेवलप हो गए थे, एंटी मलेरिया, कीमोप्रोफाइलेक्सिस, मेडिसिन का स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस स्टार्ट हो गया था. और जो मेडिसिन थी दैट मूव फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गन. ठीक है, दिस इज द रिडक्शनिस्ट अप्रोच फ्रॉम ऑर्गन टू द सेल. And even there was uncovering of the genetic code, medicine became highly technical. अब जो था 20th सेंचुरी तक आते आते क्या हुआ, मेडिसिन जो थी जो कि पहले ह्यूमन बॉडी को हम एक तो इन टोटलिटी देख रहे थे कि ह्यूमन बॉडी जो है वो अरकान से मिलकर के बनी हुई है और उसके अंदर ह्यूमर्स होते हैं, ह्यूमर्स का इम्बैलेंस है, वो ठीक कर दो तो ठीक हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर फीवर भी हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमोरल इम्बैलेंस को ठीक कर रहे हैं. किसी के सर में दर्द हो रहा है तो भी हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमोरल इम्बैलेंस को ठीक कर रहे हैं ना, एक पर्टिकुलर पिल नहीं दे रहे हैं. लेकिन अब तक आते आते यहाँ तक 20th सेंचुरी तक ये जो वेस्टर्न मेडिसिन थी व्हाट स्टार्टेड डूइंग, एग्जैक्ट कॉज पिन पॉइंट कर लिया. इवन दे वेंट टू द लेवल ऑफ द जीन, जेनेटिक कोड तक
पहुंच गए कि इस पर्टिकुलर जेनेटिक कोड को अगर चेंज कर दिया जाए तो वो डिजीज भी ठीक हो जाएगी, इस लेवल तक पहुंच गए। या इस पर्टिकुलर सेल को टारगेट कर दिया जाए, नैनो मेडिसिन वर डिस्कवर्ड, ठीक है, नैनो मेडिसिन आ गई कि अगर ये इसको ले लिया जाए तो फिर जो है वो वहां पर्टिकुलर सेल ठीक कर दे तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इस हद तक पहुंच गए, लेकिन उनकी अप्रोच जो थी वो हमेशा रिडक्शनिस्ट अप्रोच कहते हैं इसको, कि दे व्यू ह्यूमन बॉडी एज अ मशीन, ठीक है। उनकी अंडरस्टैंडिंग, जो वेस्टर्न साइंटिफिक मेडिसिन हमेशा ये अंडरस्टैंडिंग लेके चली कि अगर जिस बॉडी के पार्ट में बीमारी है उस बीमारी को अगर ठीक कर दिया जाए तो ह्यूमन बॉडी जो है वो ठीक हो जाएगी, है ना। उसी अप्रोच, तो उन्होंने सेल तक लेवल तक पहचान लिया कि कहां पर डिस्टरबेंस आ रही है, उस डिस्टरबेंस को ठीक कर दो तो हम भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसमें भी फिर आगे प्रॉब्लम आई, ठीक है। उसमें ये प्रॉब्लम आई कि 21st सेंचुरी में जो उस लेक्यूनास थे वो अपीयर होने शुरू हो गए, कि बहुत सारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, इलनेस हैं, दे बिकम मीनेस टू द सोसाइटी, उनके लिए संभालना बहुत मुश्किल हो गया। मलेरिया, लेप्रोसी, एड्स, फिर जो वैसे उनकी जो दवा की कॉस्ट थी बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई। देन द साइड इफेक्ट्स एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स स्टार्ट अपीयरिंग। फिर आइट्रोजेनिक ओरिजिन ऑफ डिजीजेस जो थी वो अपीयर होने लगी, मींस जो वो डिजीजेस जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से हो रही हैं। देन देयर वर लॉट ऑफ द डिजीजेस जिनके बारे में पता नहीं कर पाए स्पेसिफिक कॉज क्या है उस डिजीज का, एंड दे नेम्ड इट एज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ठीक है। एंड देयर वाज आल्सो no equity, means imbalance in the distribution of the health services. Those who were well off, those who are living in the cities, only they were able to avail that particular scientific मेडिसिन, वो वहीं तक रह पाई। वो इंटीरियर्स में, कोने कुतरे में जो लोग रह रहे हैं, डिस्क्रीट पॉपुलेशंस हैं, वहां तक जो था वो ये आपकी वेस्टर्न साइंटिफिक मेडिसिन अप्रोच नहीं कर पाए। जिसके पास पैसा है, जो शहरों में रह रहे हैं, तो वही लोग ज्यादातर उसको अवेल कर पाए। तो ये सारी चीजें आते आते ये वेस्टर्न साइंटिफिक मेडिसिन की ये सारे नेगेटिव इफेक्ट्स भी, या नेगेटिव एस्पेक्ट जो थे दुनिया के सामने आने लगे। ठीक है, तो जब 21st सेंचुरी में इन चीजों से परेशान हुआ इंसान, तो फिर WHO आया। ये मे बी आई हैव मिस द स्लाइड, यस दिस इज इट। WHO ने एक स्लोगन दिया। WHO सेड कि हेल्थ फॉर ऑल बाय 2020 AD, ठीक। तो उसका ये जो स्लोगन था, उस स्लोगन में उसने कहा सबको, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल शुड बी मेड हेल्दी, हर इंडिविजुअल को जो है सेहतमंद करना है। लेकिन वो कैसे अचीव हो वो टारगेट, ठीक है, वो टारगेट कैसे अचीव हो, बिकॉज जो वेस्टर्न साइंटिफिक मेडिसिन है दैट इज लिमिटेड ओनली टू अ सर्टेन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कुछ ही पार्ट्स में है, हर किसी को अवेलेबल नहीं है। तो उसने कहा कि हमको इसके लिए ये जो ट्रेडिशनल हीलर्स कहीं ना कहीं हैं, कुछ हैं, तो वो उनसे हेल्प लेनी होगी, बिकॉज वेस्टर्न साइंटिफिक मेडिसिन का मैन पावर भी कम है, हर जगह अवेलेबल भी नहीं है, कॉस्ट है, फिर उससे रिलेटेड जो साइड इफेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट होते हैं उसको हैंडल करने के लिए भी बहुत सारी मैन पावर चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो ये सारी चीजें नहीं है, तो हम इस टारगेट को कैसे अचीव करें। तो उसके लिए उसने क्या किया, एक टर्म क्वाइन किया, दैट वाज द ट्रेडिशनल मेडिसिन, WHO ने, और कहा कि ये ट्रेडिशनल मेडिसिन विल हेल्प। अब ये हमको ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है वो हेल्प करेगी, और हम इनके लोगों को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे टू अचीव द टारगेट ऑफ हेल्थ बाय ऑल बाय 2020। तो उसकी जो डेफिनेशन दी गई ट्रेडिशनल मेडिसिन की, वो डेफिनेशन ये दी गई कि द मेडिकल नॉलेज दैट डेवलप्स ओवर जनरेशंस विद इन वेरियस सोसाइटीज बिफोर द एरा ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, द सम टोटल ऑफ द, सॉरी, द डेफिनेशन जो है वो ये है, द सम टोटल ऑफ द नॉलेज, स्किल्स एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है, टोटल नॉलेज
या स्किल्स हो या प्रैक्टिसेस हो जो कि बेस करती हो बेस्ड ऑन द थ्योरीज बिलीव्स एंड एक्सपीरियंसेस। किस पे बेस कर रही है नॉलेज? थ्योरीज हो, चाहे वो उनके बिलीव्स हो कि भूत और आत्मा अंदर आ जाती है बॉडी के अंदर, या उनके एक्सपीरियंसेस हो, उन्होंने देखा हो कि ऐसे घिस के पत्ती लगा दो तो ठीक हो जाते हैं। इंडिजिनस टू डिफरेंट कल्चर्स, जो कि डिफरेंट कल्चर्स के अंदर मौजूद है पहले से, वेदर एक्सप्लिकेबल और नॉट, चाहे उनका मैकेनिज्म, चाहे उनके थ्योरीज बिलीव्स एक्सप्लेनेबल हैं, समझाने लायक हैं कि नहीं, used in the maintenance of health as well as in the prevention, diagnosis, improvement or treatment of the physical mental illness are called as traditional medicine। ठीक है, कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी नॉलेज, कोई भी ऐसी स्किल कि हथौड़ा मारते हैं यहाँ पे स्पाइन में और जो उसका दर्द ठीक हो जाता है, ये जस्ट एक स्किल है या एक प्रैक्टिस है जो कॉमनली क्या है, किसी जनरेशन टू जनरेशन जो है ट्रांसफर होकर के कोई प्रैक्टिस कर रहा है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ या फॉर द डिजीज ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज कर रहा है अगर, तो हम उसको ट्रेडिशनल मेडिसिन कहेंगे। बस उसके लिए ये है कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हुई हो, कुछ पर्टिकुलर कल्चर में वो प्रैक्टिस होती हो, तो हम उसको ट्रेडिशनल मेडिसिन कहेंगे एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन विल बी एक्सेप्टेबल। तो बस जब ये चीज हुई तो एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला क्रिएट हुई और उस अम्ब्रेला के अंदर बहुत बहुत सारी चीजें जो थी वो ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर आ गई एंड इट वाज द यूनानी मेडिसिन आल्सो जो कि उस ट्रेडिशनल मेडिसिन के अम्ब्रेला के अंदर आ गई और उसको गवर्नमेंट पैट्रोनेज मिली और बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए। लेकिन यहाँ पर जो ये जो हमारी बात हुई थी कि किस तरह से आफ्टर 20th सेंचुरी तक हमने बात करा था वेस्टर्न मेडिसिन का डेवलपमेंट, लेकिन ये जो आपका टाइम पीरियड जो हमने शुरू में बात करी थी, ये वाला जो टाइम पीरियड था, राइज ऑफ वेस्टर्न साइंटिफिक मेडिसिन, कि साइंटिफिक मेडिसिन राइज हो रही थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, डिवीजन हो रहा था कि बिटवीन द साइंटिफिक नॉलेज एंड अनसाइंटिफिक नॉलेज। उसी टाइम में ये जो आपकी मेडिसिन ये सब जो थी, ठीक है, जो कि मेडिकल नॉलेज जो कि अरबिक लिटरेचर के फॉर्म में, जर्मन लिटरेचर में, फ्रेंच में, यहाँ पर जो अवेलेबल थी वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू करी। ठीक है, ये सब चेंजेस आए, साइंटिफिक लेवल पर चेंजेस आए, नॉलेज का डिवीजन हुआ, बट दीज थिंग्स परसिस्ट। ये जो थ्योरी जो बुकरात ने प्रपोज की थी, वो जिसके ऊपर राजी ने जो थ्योरी पे काम किया था, जो जालिनूस ने, बुकरात ने पूरी थ्योरीज प्रपोज की थी, जिस तरह से इलाज करते थे या जिस तरह से चाइनीज मेडिसिन में इलाज हो रहा था उधर एशियन कॉन्टिनेंट में, या आयुर्वेदा में इलाज हो रहा था, कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिसेस भी जो थी वो कंटिन्यू करी, वो बिल्कुल खत्म नहीं हो गई थी। ठीक है, वो साइंटिफिक मेडिसिन के आने पर और ये सब माइक्रोब्स के डिस्कवरी, डिसइंफेक्टेंट्स के डिस्कवरी, इन सब के जब पूरा साइंटिफिक नॉलेज के आने पर वो खत्म नहीं हुई, बिकॉज दे वर क्लोज टू द नेचर, दे वर क्लोज टू द ह्यूमन काइंड, और फिर उसके प्रैक्टिशनर्स जो थे वो जनरेशन टू जनरेशन अपनी चीजें जो थे वो ट्रांसफर कर रहे थे। मतलब उस टाइम में भी जो मेडिटेरेनियन रीजन है, जो आयुर्वेद या आपका एशियन रीजन है, वहां पर ट्रेडिशनल हीलर्स जो थे मौजूद थे, अरबिक मेडिसिन के वाले जो हकीम थे वो मौजूद थे। ठीक है, वो अपना हिकमत का इलाज कर रहे थे, मगर सीख कौन रहा था उसको? उनके जनरेशन के लोग ही सीख रहे थे। ठीक है, वो अपने डेटा को जो था वो बस सिर्फ अपने बच्चों को सिखा रहे थे, बट हार्ट टू हार्ट नॉलेज ट्रांसफर हो रहा था। तो उसी ट्रांसफर में Am I audible to you? Yes, ma'am. अच्छा, तो उसी ट्रांसफर में क्या हुआ कि
यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो थी वो एंटर हुई इनटू द इंडिया, ठीक है, वो एंटर हुई इंडिया में अराउंड 1300 एडी। ये पूरा एक बहुत बड़ा लंबी लिस्ट है, मैं बताऊंगी तो बहुत आप लोग लेंदी हो जाएगा। इन शॉर्ट आई एम टेलिंग यू कि हाउ थिंग्स डेवलप्ड, और ये जो मेडिटेरेनियन रीजन के जो लोग थे दे एंटर्ड इनटू द इंडिया थ्रू द मुगल्स जो थे वो अपने साथ हकीम थे, उनको लेके गए, और इंडिया में ऑलरेडी वैद्य जो थे वो मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न साइंटिफिक मेडिसिन भी चलती रहती थी, और जो है आपका ये हकीम और वैद्य जो थे वो भी इलाज मुआवजा कर रहे थे पूरा। वो अभी आप जब उसका इंडिया में किस तरह से एंटर हुई यूनानी मेडिसिन, और किस तरह से फिर उसके अंदर फर्दर डेवलपमेंट्स हुए, और वो जो अपने साथ लिटरेचर लेकर के आए थे विच वाज इन अरबिक एंड पर्शियन, वो मोस्ट क्लोजेस्ट लैंग्वेज क्योंकि उर्दू थी, तो उर्दू में किस तरह से वो ट्रांसलेट हुए। तो ये सारे डेवलपमेंट्स भी इंडिया में चल रहे थे, और उस डेवलपमेंट के साथ साथ एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ इन 1927, सॉरी 1906 में क्या हुआ, इंडिया में देयर वाज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस बाय हकीम अजमल खान, ठीक है, उनकी बहुत बड़ी कांग्रेस हुई। अभी तक ये जो नॉलेज थी, ये जो अनसाइंटिफिक नॉलेज आप जिसको कह सकते हैं, या ट्रेडिशनल नॉलेज जिसको कह सकते हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन लोगों के पास जो थी वो इस तरह से ट्रांसफर होके मौजूद थी, कुछ अरबिक में, पर्शियन में, कुछ उर्दू में। लेकिन 1906 में जब ऑल इंडिया आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस हकीम अजमल खान जो थे उन्होंने एस्टैब्लिश करी, तो फिर उन्होंने कहा कि इस चीज को हम क्यों ना एक सिलेबस के फॉर्म में लाएं, क्यों ना एक स्टडी की इंफ्रास्ट्रक्चर की उसमें लेकर के आए कि ये चीज बच्चों को, लोगों को पढ़ाई जा सके, जिस तरह से कि वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज वालों के अपने स्कूल्स हैं, अपने हॉस्पिटल्स हैं, तो क्यों ना हम भी इसी पैटर्न पर इसको एक सिस्टमिक वे में लेकर के आए, ठीक है। तो यहाँ से कोशिशें शुरू हुई, और धीरे धीरे होते होते 1921 में आयुर्वेदिक यूनानी तिब्बी कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ, 1927 में अजमल खान तिब्बिया कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ, और पूरा पूरा एक करिकुलम डिजाइन किया गया कि ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है इनकी पूरे करिकुलम बनाया जाए, इसको एक सिस्टमैटिक उसमें लेकर के आया जाए, ठीक है। वो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर उसके बाद 1995 में क्या हुआ, they were setting up a department of Indian system of medicine and homeopathy, जिसको कि ISM and H कहते हैं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। एक ये एस्टैब्लिशमेंट हुआ, और ये इसमें 1995 में पहली बार ये बात आई कि हमारी जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, आयुर्वेदा है, योगा है, सिद्धा है, तो दीज आर 5 मेडिसिन जो थी उनको कहा गया कि इनको हम एक्सेप्ट करते हैं कि दीज आर द यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। लेकिन इसका नाम यूनानी क्यों रखा गया, ओइंग टू द ओरिजिन, क्योंकि उसमें मेजॉरिटी जो कंट्रीब्यूशन था वो क्योंकि ग्रीक से चला था, हालांकि अरब्स ने उसमें बहुत कंट्रीब्यूट करा, लेकिन क्योंकि वो चला ग्रीक से था, तो ओइंग टू द ओरिजिन बात ही समझ में आई कि इंडिया में कि जब उसको सोचा गया तो उसका नाम यूनानी रख दिया गया फ्रॉम इनिशियल स्टेजेस। तो जब से वो उसका नाम यूनानी कह दिया गया, हालांकि यही लिटरेचर और यही कंसेप्ट जालिनूस की और बुकरात की जो किताबें हैं, जो कंसेप्ट और वो प्रपोज करती हैं, और द मेथोडोलॉजी ऑफ ट्रीटमेंट जो प्रपोज करती हैं, वही पूरी दुनिया में ही फैला हुआ है। उनके अपने डिफरेंट, आप देखेंगे लैटिन में बहुत सारा लिटरेचर है, ठीक है, और कानून जो है वो मेरे ख्याल से कितनी उसमें लैंग्वेजेस में सब में वो करी गई थी, और लोग पढ़ते थे उसको, जानते थे। तो ये जो है ये बस इस वजह से इसका नाम यूनानी रख दिया गया। अक्सर बच्चे ये सवाल करते हैं कि मैम आयुर्वेदा तो पूरे दुनिया में है, और हमारा यूनानी जो है बस इंडिया में ही क्यों है, कोई जानता ही नहीं है यूनानी को। तो एक्चुअली में बात ये नहीं है, आयुर्वेदा जो है वो क्योंकि आयुर्वेदा के नाम से ही जाना गया,
वो आयुर्वेदा जब अगर ऑस्ट्रेलिया में है आयुर्वेदा जाना जाता है, वो अमेरिका में है तो आयुर्वेदा जाना जाता है, ठीक है, जब वो ग्रीक में है तो आयुर्वेदा जाना जाता है, कहीं भी जा रहा है उसका वही नाम है। लेकिन क्योंकि हमारा जो हम पढ़ रहे हैं यूनानी मेडिसिन में, ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये एक्चुअली ट्रैवल होकर के नॉलेज वही वाली नॉलेज है जो जब इंडिया में एंटर हुई, तो इंडिया में जब उसको डिजाइन एक इंफ्रास्ट्रक्चर के फॉर्म में, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के फॉर्म में लाने लगे, तो उसका नाम उन्होंने ओइंग टू द ओरिजिन दे प्रपोज इट एज अ यूनानी। तो बस फिर इस वजह से जो है वो यूनानी हम उसको कहने लगे। हालांकि इट इज सेम, क्योंकि पर्शियन मेडिसिन में भी आपको अल कानून फिर तिब ही पढ़ाई जा रही है, हिपोक्रेट के बेस पे जो उसकी उसूल इलाज है वही पढ़ाया जा रहा है, जो जालिनूस का उसूल इलाज है वही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इस्लामिक मेडिसिन में भी मेजॉरिटी वो इब्न सीना और उनको ही कोट कर रहे हैं, जकरिया राजी को, तो उन्हीं की चीजें आगे बढ़ाई जा रही हैं, पढ़ी जा रही हैं, ठीक है। और वही जो यूरोप वाले हैं उन्होंने एक अपना एक नाम रख दिया, उन्होंने कहा दिस इज द नेचुरल मेडिसिन, उन्हीं कंसेप्ट्स को पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो उसको नेचुरल मेडिसिन कह रहे हैं, ठीक है। अब जो वेस्टर्न साइंटिफिक मेडिसिन है, अभी मैं उसके ऊपर आ जाते हैं हम, उस इनिशियल स्लाइड के, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब वो जो इनिशियल क्वेश्चंस मैंने रखे थे उस पर आ जाते हैं हम, जो आपके सवाल थे। अब हम अपने आप को बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे इतना सुनने के बाद कि हम जो है वो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्यों आते हैं, या हम यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को हम ट्रेडिशनल सिस्टम क्यों कह सकते हैं। हम यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को तिब भी कह देते हैं, बिकॉज तिब इज जस्ट द अरेबिक लिटरेचर में मेडिकल साइंस को तिब कहते हैं। हम अपने आप को पर्शियन मेडिसिन से भी इक्वेट करते हैं, क्योंकि पर्शिया के भी कंट्रीब्यूशंस हैं इस नॉलेज में, जो कि हम पढ़ते हैं, जिस तरीके से इलाज करते हैं। हम इसको ग्रीको अरेबिक मेडिसिन भी कहते हैं, ठीक है, अरेबिक मेडिसिन भी कह सकते हैं, इस्लामिक मेडिसिन भी कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि जब हमारा इंटरैक्शन वेस्टर्न मेडिसिन वालों के साथ होता है, तो उन्होंने कहा कि वेस्टर्न साइंटिफिक मेडिसिन, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम मेडिसिन है एंड आप मेन स्ट्रीम नहीं है, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया यू आर द ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन। आयुष को उन्होंने ऑल्टरनेटिव मान लिया, ठीक है। उन्होंने नेचुरल मेडिसिन भी कहना शुरू कर दिया, बिकॉज हमारे जो रिसोर्सेज हम यूज करते हैं फॉर द मेडिसिन वो नेचर से हम लेते हैं, तो उन्होंने नेचुरल मेडिसिन कहा। उन्होंने ही हर्बल मेडिसिन वर्ड हमारे लिए कॉइन किया। इवन जब हम जो वेस्टर्न साइंटिफिक मेडिसिन और जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन यूनानी का मिल करके काम कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन, कि दोनों की थ्योरीज एंड अप्रोच जो है वो एक पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेटिव मेडिसिन कहा गया। कहीं पर कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी हम उसको कह देते हैं, ठीक है। तो आई होप अब इतना पूरा सिनेरियो सुनने के बाद, और जो डिफरेंस था किस तरह इंडिया में एंटर हुई और हमारे क्या डिफरेंट नेम थे, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो है हमारा जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो क्या है, एंड हम उसको उर्दू में क्यों पढ़ रहे हैं, और इसके जो कॉन्सेप्ट्स एंड फिलोसफी हैं वो इतनी वेग क्यों हैं, व्हाई दे आर नॉट लाइक द वेस्टर्न साइंटिफिक मेडिसिन, वो वेस्टर्न साइंटिफिक मेडिसिन जैसी बिल्कुल कॉन्क्रीट और स्पेसिफिक क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, लेकिन बात यही है सारी, हम शायद इतने ऊपर और इतना हम लोग को इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लेवल पर एक्सेप्ट ना होते, या हमारी पूरी एक आयुष मिनिस्ट्री अलग से डेवलप ना हुई होती, अगर WHO को हमारी जरूरत नहीं होती। और WHO को हमारी जरूरत है इन द ओरिजिनल फॉर्म, जो हम ट्रेडिशनल हैं, हमारे ट्रेडिशनैलिटी के साथ हमारी जरूरत है, ना कि वेस्टर्न कि हम वेस्टर्न बन करके हम उनके किसी काम के नहीं रहेंगे, बिकॉज फॉर द वेस्टर्न पर्पस तो वहां पर वेस्टर्न साइंटिफिक मेडिसिन ऑलरेडी है, वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है ना उनके पास, तो उनको जरूरत किस चीज की थी, उनको जरूरत थी कि कुछ लोग जिसमें कुछ इस तरह की चीजें भी आए हमारे मेडिसिन में, जो कि ट्रेडिशनलाइज हों, और लोग जो है वो अंदर अप्रोच करने वाले भी हों, क्लोज टू द नेचर हो, तो इस तरह की उनको जरूरत थी। तो विद आवर ट्रेडिशनल अप्रोच दे द वर्ल्ड नीड अस, हम इसको ये कह सकते हैं, ठीक है। सो फाइनली टू कंक्लूड आई कैन से, जो इस मेरे ख्याल से लेक्चर के बाद टेक अवे मैसेज यू कैन से, जो जाना चाहिए, जो आप लोग के दिमाग में आना चाहिए, दैट शुड बी कि वेस्टर्न साइंटिफिक मेडिसिन को एक बहुत
अलग चीज नहीं है, बट इज एन ऑफ शूट ओवरग्रोन ब्रांच ऑफ द ट्रेडिशनल होलिस्टिक मेडिसिन, है ना। वही ट्रेडिशनल मेडिसिन जो 1500 एडी से पहले थी, उसी की ही एक ग्रोथ, एक पर्टिकुलर ब्रांच जैसे ओवरग्रोन कर जाए, वो वही है, ठीक है। और हम जो थे भाई, दे आर एक्सेप्टिंग हिपोक्रेट एज अ फादर ऑफ मेडिसिन, बट we are not only accepting him as a father of medicine, we are also treating the patients based on the approach given by the Hippocrate. हम उसी अप्रोच को लेकर के हम आगे बढ़े हुए, ठीक है। और लेकिन उसमें क्या हुआ, एक साइंटिफिक गैप आ गया बीच में, लाइक वेस्टर्न साइंटिफिक मेडिसिन तो उसकी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूएशन में हुई, लेकिन हमारा क्या हुआ, 1500 के बाद एक ब्रेक आ गया, उस साइंस में डेवलपमेंट नहीं हुआ, रादर दैट नॉलेज वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हार्ट टू हार्ट और जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। उसके अंदर फर्दर डेवलपमेंट्स नहीं हुए, बस वो नॉलेज और एक मोड ऑफ ट्रीटमेंट बना रहा और लोग उससे इलाज लेते रहे, फायदा होता रहा लोगों को, ह्यूमन काइंड को बेनिफिट हुआ। अभी ये इसका 2000 एडी में एकदम से रिवाइव हुआ है, वो नॉलेज दोबारा से दुनिया के सामने ला करके रख दी गई है। तो इस वजह से इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, एंड बीइंग द जो आप अंडर ग्रेजुएट अब होने जा रहे हैं इसके यूनानी मेडिसिन के, तो इट इज ऑल्सो अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम जो है उस एंशियंट क्लासिकल टेक्स्ट को बहुत ईमानदारी से पढ़ें and try to convert that classical knowledge according to the present day scientific parameters without hampering the essence of the fundamental knowledge. I hope I was able to get myself clear, and thank you so much for your patient listening. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. डियर स्टूडेंट्स, किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है? थैंक यू वेरी मच मैम, आपने थैंक यू सो मच, इतना कीमती वक्त दिया और मुझे उम्मीद है It's my pleasure also. थैंक यू thank you so much. Can I leave now? ओके मैम। Okay. सर लंच ब्रेक दे दें? हाँ, 1 घंटे। इसके बाद लंच ब्रेक कोई लेक्चर है ना? रिकॉर्डिंग हमको लंच ब्रेक कर लीजिए, ठीक है। 1 घंटे में जितना पूछ लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि क्या टाइम है, कितना लेंगे। उसके बाद इनका कौन है स्पीकर? आप सुन